Good morning, dear students and dear parents. I am here again with a new English session. Today is Tuesday and it's 5th of May. As I have given you some homework on Monday, like yesterday. So I have given you a telephonic conversation between like Karuna's mother and her friend Asha, who called up. आशा ने करुणा की मम्मा को फ़ोन किया टू लेट जस्ट नो कि करुणा कैसी है और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए. सो व्हाट वाज द इन्फॉर्मेशन? इट वाज अबाउट दैट मंडे को देयर विल बी अ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मैथ्स ओलंपियाड विल बी सिलेक्टेड. So, and Karuna was not well and she was sleeping. So Asha said or told her mom to deliver a message about that कि Monday को she should be prepared for the test and on the basis of which she can be selected for the maths olympiad. And the next information she gave is that nothing extra to be prepared. She has to just brush up whatever we have done in the class. जितने भी topics class में हुए हैं वही पढ़ने हैं दोबारा से. Brush up means उसको फिर से revise करना. And then she told कि if any further details are required then Karuna can call Asha between 6 to 7 p.m. So this was the basic telephonic conversation which was there in the assignment. So I told you that I'll be providing the assignment solution also. So as you can see on the screen, it's my solution there for you. So I have written the message in a box. That is very important. I have given a heading there in capital letters. Then and left hand side I have written the date, yesterday's date, May 4, 2020. And the timing can be like if no proper timing is given in the statement or question. अगर आपको कोई proper timing नहीं दी है तो आप कुछ भी टाइमिंग अप्रोप्रिएट लिख सकते हैं. डू नॉट राइट इट लाइक 3 AM रात को, लाइक आधी रात को 3 बजे कोई मैसेज नहीं लिखेगा. सो इट शुड बी वेरी वैलिड. Okay, and if it is said in the question that you have received the message, so you can use your name at the bottom like you are writing the message. तो you के लिए आपको अपना ही नाम लिखना है, उसमें कोई अगर आपको नाम नहीं दिया है. Now in this assignment हमने मैसेज लिखना है करुणा के लिए जो सो रही है. शी इज़ नॉट वेल. और कौन लिख रहा है? उसकी मम्मा, बिकॉज शी हैज़ टू गो समवेयर और वो इन्फॉर्मेशन उसको देना चाहती है. सो शी ड्राफ्ट्स अ मैसेज. Karuna, it can be dear Karuna also or simply the name. Asha called up when you were sleeping to inform that on Monday there will be test to select participants for maths olympiad. It should be like there will be a test. Okay, so there will be a test on Monday to select maths olympiad participants. ये information थी basic, we have given it. Then the next information she has given that the test will be based on the topics covered in the class. जो भी क्लास में करवाया है अभी तक उसी के बेसिस पे टेस्ट होगा. एंड देन फॉर फर्दर sorry, I have just missed a word here, so I'll write here details. For further details, for further details you can call her between 6 to 7 p.m. And who has written this message? मम्मा और मदर यू कैन राइट. आप उनका नाम नहीं लिखोगे. इट इज़ नॉट इधर गिवन, दिया भी नहीं है इन्फॉर्मेशन, लेकिन आप ऐसे भी नहीं लिख सकते. मम्मा विल नॉट राइट हर नेम बिकॉज शी इज़ अ क्लोज रिलेटिव. ओके, सो दिस वॉज योर लाइक सोल्यूशन ऑफ द होम असाइनमेंट. आई होप आप सब ने भी ऐसा ही लिखा है. हाँ, दे कैन बी अ सर्टेन चेंजेस इन द बॉडी ऑफ द मैसेज, सो इट्स ओके. Okay, so this was how we write the message. Now moving on further for today's session, I'll be again giving you one more practice. इस हफ्ते में हम practice करेंगे because in writing sections you need more and more practice. जितने ज़्यादा examples आप solve करोगे उतना ज़्यादा clear हो जाएगा. So we'll writing some message drafting we'll be doing today. Read the telephonic conversation and draft a message. And here it is a conversation between Mr. Gupta and Gaurav. And Gaurav has to leave for his tuition classes. So he has to draft a message and we will see कि किसके लिए और क्या message drop करना है. Okay, this is our today's practice. इसमें आपको यही message I'll be giving in PDF. So let us start with the conversation. Mr. Gupta, could I speak to Mr. Roy, please? So Mr. Gupta calls and asks, could I speak to Mr. Roy, please? Mr. Roy से बात कर सकता हूँ. Gaurav, he is not at home. May I know who is calling? वो घर पर नहीं है, क्या मैं जान सकता हूँ कौन बात कर रहा है? Mr. Gupta, this is Amar Gupta, his colleague. May I leave a message for him?
वो कहते हैं मेरा नाम अमर गुप्ता है, मैं आप मतलब मिस्टर रॉय का कलीग हूँ, एंड आई वांट टू गिव अ मैसेज। वो कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं उनके लिए। गौरव, या श्योर, आई एम हिज सन, यू मे टेल मी व्हाट इट इज़ अंकल। सो गौरव इज़ हिज सन, मिस्टर रॉय का बेटा है, एंड ही सेज़ कि वो घर पर नहीं है, सो आई कैन गिव द मैसेज, आप मुझे बता सकते हैं। Mr. Gupta, please tell him that I have got a return flight to Kolkata, booked for him for the conference on Saturday. I'll be mailing the details shortly. Mr. Gupta, उनके जो कलीग हैं वो एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं मिस्टर रॉय को, जो घर पर नहीं है और फ़ोन उनके बेटे ने उठाया है, और वो कहता है कि आप मुझे बता दीजिए अंकल, मैं पापा को कन्वे कर दूंगा मैसेज। सो उन्होंने क्या मैसेज दिया है इन्फॉर्मेशन। अब हमारा मैसेज बॉडी यहाँ से शुरू, मतलब इस कंटेंट पे बेस्ड होगा। आई हैव गॉट अ रिटर्न फ्लाइट टू कोलकाता बुकड फॉर हिम, मतलब मिस्टर गुप्ता ने मिस्टर रॉय के लिए एक फ्लाइट टिकट्स बुक करवाई हैं फॉर कोलकाता। ऑन सैटरडे देयर इज़ अ कॉन्फ्रेंस है सैटरडे को वहाँ जाने के लिए। आई विल बी मेलिंग द डिटेल्स शॉर्टली, और वो सारी डिटेल्स, टिकट, फ्लाइट टाइमिंग एंड वट एवर द फ्लाइट नेम, सो वो सारी डिटेल्स उन्होंने मेल कर दी हैं। ओके, मेल कर देंगे वो। सो दिस बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको देनी है मिस्टर रॉय को, एंड ही इज़ नॉट होम। सो गौरव जो है उसको एक मैसेज बनाना पड़ेगा। सो नाउ यू नो कौन मैसेज बनाएगा, गौरव। सो या दिस वाज अबाउट द कॉन्वर्जेशन, इतना ही कॉन्वर्जेशन है, एंड दैट एंड्स। अब हम इसके बेसिस पे क्या मैसेज बनाएंगे, यू कैन सी दिस, द होल पोर्शन अबव हेयर इज़ जस्ट जनरल कॉन्वर्जेशन कि येस हु इज़ स्पीकिंग, व्हाट इज़ द मैटर, लाइक उसमें सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हुआ है कि ओके आई एम अमर गुप्ता, आई एम हिज सन, यू कैन लीव द मैसेज। सो ये जो छोटा सा पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज़ ओनली द मैसेज बॉडी विच विल बी देयर इन द मैसेज राइटिंग। आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया, बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। सो यू हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स। जब भी आपको कोई टेलीफोनिक कन्वर्जेशन दी जाती है, it is very easy to find the message body content, और message body हमें पता है we should not extend up to from 50 words 50 words से ज़्यादा हमें लिखना भी नहीं है। So as you can see the starting, could I speak to Mr. Roy, he is not at home, I am Amar Gupta, his colleague, I am his son, you may tell me what it is। तो यहाँ तक तो वो सिर्फ आप जो ऑब्वियसली सब लोग जब फ़ोन करते हैं तो इतना कन्वर्जेशन इज़ नेसेसरी, वो होता है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन है कि वो जब मैसेज लिखेगा तो वो क्या बताएगा, किसने मैसेज दिया है, दैट इज़ अमर गुप्ता, हिज कलीग। सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिला है। देन द इन्फॉर्मेशन इज़ इन द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस टेलीफोनिक कन्वर्जेशन, दैट इज़ प्लीज़ टेल हिम दैट आई हैव गॉट अ रिटर्न। ये सारा दिस इज़ द मैसेज बॉडी। इतना ही आपको ढूंढ लेना है पहले, एंड देन यू कैन फ्रेम द मैसेज इजीली। नाउ लेट अस गो टू द सॉल्यूशन साइड। आई विल बी फ्रेमिंग द मैसेज एंड यू हैव टू डू इट विद मी। और ये अब कहाँ करेंगे, obviously in grammar notebook. Okay, the last dialogue I just forgot to tell you. Gaurav, oh uncle, I shall deliver the message as soon as he is at home. वो जैसे ही घर पर आएंगे मैं मैसेज डिलीवर कर दूंगा। Now as we all know, हमें बॉक्स बनाना है एक पहले, आप सबको पता है। Then in the center there is a capital like a heading in between with the capital letters. Then on the left hand side date. So I am writing today's date, May 5, 2020, and then on the right hand side there will be time, so let it be 1:30 PM। ठीक है, सो हमने बेसिक चीज़ें लिख दी हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेट, टाइम एंड सैल्यूटेशन। बॉक्स हम ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं अपना। सो योर सैल्यूटेशन विल बी फादर और पापा और डैडी, सॉरी जो भी आप लिखना चाहें। So I am writing here father and a comma here. Okay, this is done with the basic things. अब हमें मैसेज बॉडी फ्रेम करना है। सो कौन को सब हम स्टार्ट ऐसे ही करते हैं कि किसका फ़ोन आया था। सो विल टेल पापा या फादर, योर कलीग, सॉरी, और उनका नेम बताएंगे, मिस्टर अमर गुप्ता, Your colleague Mr. Amar Gupta called in your absence, जब आप घर पर नहीं थे। और आप ये भी लिख सकते हैं when you were not home. Your colleague Mr. Gupta called in your absence. This is also correct.
कि जब आप यहाँ पर नहीं थे, यू वर नॉट प्रेजेंट हियर। ही हैज़, अब हम डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन देंगे। ऑब्वियसली जब कॉल किया है एब्सेंस में और आप मैसेज ड्राफ्ट करो, दैट मीन्स कोई इन्फॉर्मेशन है, सो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ही इन्फॉर्म्ड, इफ़ यू राइट इट ऑल्सो इट विल बी ओके, अगर लिखते भी हैं तो ठीक रहेगा। ही हैज़ गॉट, सो आपको वहीं से कॉन्वर्जेशन से ही पूरे लाइंस पिकअप करने हैं। ही हैज़ गॉट अ रिटर्न फ्लाइट टिकट he has got a return flight to Kolkata booked, उन्होंने बुक कर दिया ऑलरेडी, सो यू हैव टू राइट सेम इन्फॉर्मेशन। हम जैसे हमने रूल्स में बताया था, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। बुक्ड फॉर यू फॉर द कॉन्फ्रेंस ऑन, कब थी कॉन्फ्रेंस? इट वॉज ऑन सैटरडे, सो कॉन्फ्रेंस ऑन Saturday, S should be capital. He will be, and the next information was he will be mailing the details, वो आपको सारी डिटेल्स मेल कर देंगे ताकि वो अपना मेल चेक कर लें। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि वो बाकी डिटेल्स के लिए डायरेक्टली अपना ईमेल चेक कर सकते हैं, ईमेल आईडी, एंड ही कैन गेट ऑल द डिटेल्स लाइक फ्लाइट नंबर एंड टाइमिंग एंड शेड्यूल, एवरीथिंग। Then you have to tell you that where are you, why you are drafting this message. So I am leaving, as I have told you earlier, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था that you are Gaurav and you have to leave for your tuition classes. So I am leaving for my tuition class. You have to just write the given information and you will write your name. कौन ड्राफ्ट कर रहा है मैसेज? गौरव. So here's is the message ends and you just complete the box. Always do it like this. पहले आप 3 edges बना लीजिए and when the message ends just draw the last line here at the bottom. So this is your solution. Message in the center, date, time, salutation. Your colleague Mr. Amar Gupta called in your absence. आप नहीं थे तो उनका फ़ोन आया था. He has got a return flight to Kolkata booked for you for the conference on Saturday. हमने सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी वो लिख दी है. Then what he has to do कि वो फिर अब उन्हें क्या करना है उस चीज़ की डिटेल्स के लिए. He will be mailing the details. वो आपको मेल करेंगे. यू कैन चेक. आई एम लिविंग फॉर माई ट्यूशन क्लास गौरव. इफ़ नथिंग लाइक नो नेम इज़ गिवन, अभी तो टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन थी तो ऑब्वियसली हमें नेम गौरव पता लग गया, बट इन सम क्वेश्चंस मैसेज राइटिंग में समटाइम्स इट हैपन्स कि आपको टेलीफोनिक कन्वर्जेशन नहीं दी जाती, डायरेक्टली एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन दिया जाता है एंड इट इज़ रिटन देयर यू हैव टू ड्राफ्ट. दैट मीन्स आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे. ओके. देन वेन एवर यू आर राइटिंग समटाइम्स इट इज़ गिवन लाइक हमने जो लास्ट मैसेज कल किया था करुणा वाला, उसमें इट वॉज 10 AM. सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप उससे 15-20 मिनट बाद ही मैसेज बनाएंगे और इट इज़ नॉट मैंडेटरी ऑल्सो. आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल, जस्ट चूज़ अ रेलिवेंट टाइमिंग. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, अभी मैंने पहले भी बताया कि कुछ ऐसा इम्प्रॉपर टाइमिंग मत लिखिए. एंड राइट डाउन द डेट प्रॉपरली इन दिस फॉर्मेट. Salutation is very important and this is done. This is our today's session. Okay, so I'll be giving you the speed. I think this is clear, very much clear in the video also, but if like not to leave any doubts, I'll be mailing the PDF also. So I just again show you the question here. Mr. Gupta and Gaurav की conversation है. Okay, so this is the end of the session from my side. एंड आई होप आपको मैसेज राइटिंग क्लियर होता जा रहा है हर एक एग्जाम्पल के साथ. इफ़ यू स्टिल हैव डाउट्स प्लीज़ आस्क मी एंड जस्ट टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. इसमें द बेसिक थिंग और सबसे ईजी क्यों है ये, बिकॉज इसमें आपको कहीं से भी कुछ भी लाइक अपने आप नहीं लिखना है. यू डोंट हैव टू सर्च फॉर वर्ड्स, यू डोंट हैव टू बिल्ड सेंटेंसेज ऑन योर ओन. अपने आप कुछ नहीं बनाना है तो डाउट भी नहीं रहेगा कि हाँ शायद इसमें ये गलत है वो गलत है. थोड़ा बहुत अमेंडमेंट है. फॉर्मेट इज़ वेरी सिंपल और छोटा सा है, इसमें ज़्यादा हम बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिख सकते और जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें डायरेक्टली यहाँ से मिल जाता है. सो दिस इज़ हाउ वी डू इट. आई एम हैविंग वन मोर सेशन दिस वीक. एक और सेशन रहेगा, उसमें हम एक और एग्जाम्पल करेंगे. आई ट्राई
थोड़ा सा एक अच्छा सा और एग्जाम्पल आई सर्च फॉर यू, एंड देन दिस विल बी द एंड ऑफ मैसेज राइटिंग, एंड नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विथ समथिंग न्यू. तो प्लीज़ जितने एग्जाम्पल्स आप ज़्यादा और ढूंढ के कर सकते हैं, इट विल बी वेरी वेरी, यू विल हैव अ गुड होल्ड ऑन मैसेज राइटिंग, एंड इट इज़ द वन राइटिंग सेक्शन जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो. फुल लाइक 5 मार्क्स का होता है, एंड यू कैन गेट 5 out of 5. So bye bye from my side, and stay safe. Bye bye.